Welcome again. Today we are continuing the lesson Physiography and Drainage from the Geography Standard 10. In previous video we learned or we take the information about physiographic division of India, that is in Himalayas, North Indian plains, peninsula, coastal plains, islands, groups like this. Okay. Today we are going to learn, or today we are getting the information about the Brazil, physiographic division of Brazil, the highlands, great escarpment, coastal region, the plains and the island groups. Okay, first the highlands. The most of the region of the Brazil is covered by highlands. The highlands of Brazil and Guyana highlands together form the core of a continent of South America. The information of these highlands is as follows. Highlands, Guyana highlands, and then second Brazilian highlands or shield or plateau. Second, Guyana highlands located in the northern part. Second, Pico de Neblina peak is the highest peak, 3014 meter, lying on the border between Brazil and Venezuela. Third, Brazilian highlands located in the southern and eastern part, northern slope, Amazon its tributaries flows from the northern slope. Many rapid and waterfalls are formed by these rivers. Rivers originated from the northern slopes meet the Atlantic Ocean and southern slope. Major rivers like Uruguay, Paraguay and Paraná originated from southern slope. These rivers flow from Brazil and enter Argentina. Eastern slope, that is very steep, forming the great escarpment. Okay, now the second point, the great escarpment. The great escarpment border the eastern side of the Brazilian highlands. The information of the great escarpment is as follows. The nature and altitude of the great escarpment from Sao Paulo to Porto Alegre. The heights of Brazilian highlands or plateaus decreases remarkably, leading to the formation of a great escarpment. The altitude of a great escarpment, eastern side of the Brazilian highlands, is approximately 790 meters. The effect of the great escarpment on climate. It acts as barrier to the southern southeast trade winds. Second, it leads to the heavy rains in the Brazilian coastal areas, and it also gives rise to the rain shadow area or drought quadrilateral to the northeast of the Brazilian highlands. The coastline of the Brazilian extends for approximately 7,400 kilometers. It is divided into northern coast and eastern coast. The information of these coast is as follows. Features of the northern or northern coast. The extends from Ampa province in the north to the Rio Grande do Norte. Marjao Islands, Marjao and São Marcos Bays lies on this coast. Features of the eastern coast extends from Rio Grande do Norte to the south. Many small rivers flow to the eastern coast and meet South Atlantic Ocean. São Francisco is the only major river meeting the South Atlantic Ocean in this region. Many beaches and sand dune complexes lie on the eastern coast of the Brazil. In some areas, the eastern coast of the Brazil is protected by the coral reefs and atoll islands. The plains in the Brazil is divided into Amazon basin
in the north and Paraguay-Paraná source region in the southwest. The information of the plains in Brazil is as follows. Amazon plains. First, Amazon plains, the largest plains land of the Brazil, lies between Guyana Highlands and Brazilian Highlands in the northern part of the Brazil, where width is the maximum, that is nearly 1,300 km in the west. The width is minimum, that is 240 km, where Guyana Highlands and Brazilian Highlands come closer. Most of the area is inaccessible. The plain of Paraguay and Paraná rivers, located to the southwest of the Brazilian Highlands. It is near the source of region of Paraguay and Paraná rivers. Features of the Palental region, one of the largest wetlands in the world, characterized by the swamp and marshes, located toward the southwest of the Brazilian Highlands, extending in the state of Mato Grosso do Sul. And last point, that is a Brazilian physiography. That means first points I will read highlands, second great escarpment, third coast and fourth plain, and last point is islands. Besides mainland, some islands are also included in the Brazil. The information of these islands is as follows. Okay. Classification: coastal islands and marine islands. Features of the coastal islands formed due to the depositional work of Amazon River and its tributaries. They are near eastern coast of the Brazil in the South Atlantic Ocean and are coral islands and atolls. Features of a marine islands, where the part of the mainland of Brazil located in the Atlantic Ocean and nearby 300 kilometers away from the mainland of the Brazil, rocky. They are top of the submerged mountains. Okay, then we clear by this method. First, I read this is a geographic divisions of the Brazil. ब्राज़ील की नक्शा की तरफ आप जब देखते हैं, जब एक हमारा दृष्टिक्षेप ब्राज़ील की जो मैप पे होता है, तो हमको ये समझ में आता है कि ब्राज़ील का बहुत सारा जो भाग है वो उच्च भूमि या पठार और छोटे छोटे पर्वतों से इर्द गिर्द फैला हुआ है। ब्राज़ील में दूर तक फैले हुए बहुत ऊंचे पर्वत नहीं हैं। उत्तर में अमेज़न का जो एरिया है और नैऋत्य में पैराग्वे नदी का जो उगम है, ये छोड़ दिया तो ब्राज़ील में मैदान, जो प्लेन मैदान जो बोलते हैं, वो ज़्यादा है ही नहीं। किनारी जो समुंदर का किनारी एरिया या नदियों का जो किनारा है, वहाँ पे भी बड़े बड़े मैदान नहीं हैं। ब्राज़ील का जो हम प्राकृतिक तौर पर देखेंगे तो ब्राज़ील के 5 भाग होते हैं। एक उच्च भूमि जिसको हम बोलते हैं हाईलैंड्स, सेकेंड जो पार्ट है हम जैसे देखेंगे कोस्टल एस्क्रिप्टमेंट्स, मतलब अजस्त्र कड़ा, जो पर्वत की कड़ा होती है ना, उसको अजस्त्र कड़ा हम बोल सकते हैं। तीसरा जो किनारी प्रदेश, समुद्र या नदी का किनारी प्रदेश। चौथा मैदानी प्रदेश और पांचवा डीप समूह। ऐसे मेजर 5 भागों में ब्राज़ील का हम जोग्राफिकली बंटवारा कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो ब्राज़ील के नक्शे पे से 5 मेजर पार्ट से ब्राज़ील को हम जोड़ के देख सकते हैं। पहला जो पार्ट है उच्च भूमि, दैट इज हाईलैंड्स। दक्षिण ब्राज़ील में दक्षिण ब्राज़ील का जो एरिया है वो पठार मतलब प्लेन मैदान से व्याप्त है। इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का ढाला क्षेत्र करके भी किया जा सकता है। ब्राज़ील और गियाना जो दोनों मिलकर
दक्षिण अमेरिका का मतलब गाभा क्षेत्र माना जाता है। गयाना उच्च भूमि, 1 मिनट, गयाना उच्च भूमि का जो भाग है वो वेनेजुएला देश में होके भी वो उच्च भूमि पूरब की तरफ फ्रेंच गयाना तक फैला हुआ है। गियाना मतलब गयाना जो उच्च भूमि है वो ब्राज़ील की उत्तर साइड में रोराइमा, पारा और अमापा इन राज्यों में फैली हुई है। ब्राज़ील में उच्च भूमि का जो भाग है वो कम हाइट का ही है, परंतु ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको द नेब्लिना, ब्राज़ील का सर्वोच्चम शिखर पर्वत शिखर जो पिको दी नेब्लिना, ये ब्राज़ील और वेनेजुएला की बॉर्डर पे है और उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। ब्राज़ील का उच्च भूमि और दक्षिण पूर्व एरिया में 1000 मीटर से भी मतलब ज़्यादा है, किंतु इतर जो एरिया है, इतर के भागों में जो हाइट है 500 से 1000 मीटर के बीच में आती है। उच्च भूमि की जो हाइट है उत्तर की तरफ जो धीरे धीरे कम होती जाती है और इस दिशा में बहुत बड़े जो स्लोप्स होते हैं वो तीखे स्लोप्स नहीं है। इस उतार से बहने वाली अमेज़न और उसकी जो उपनदियाँ हैं वो बहते बहते जाती हैं और उसकी वजह से जो वाटरफॉल्स, धबधबा जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। उत्तर की तरफ से जो उतार जो है बहुत कड़े होने के, तेज़ होने के जैसे दिखते हैं, फिर भी वो जो तीखे जो उसके जो स्लोप्स है वो अकस्मात नहीं है। उनकी जो वहाँ की जो नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ उच्च भूमि के भाग में उगम होते हैं और वो अटलांटिक समुद्र में जाके मिलते हैं। मतलब ब्राज़ील की उच्च भूमि का वर्णन जो हाईलैंड्स बोलते हैं, मतलब पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश जिसको आप हाईलैंड्स बोल सकते हैं, वो एक साइड में ब्राज़ील का दक्षिण ब्राज़ील का जो एरिया है वो हाईलैंड्स मतलब उच्च भूमि का है। उसको हम ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र भी बोल सकते हैं या ब्राज़ील का पठार भी बोल सकते हैं। ओके, उनकी बहुत सी नदियां हैं, उनका जो स्लोप है उत्तर की दिशा में कम कम हो जाता है और उसकी वजह से जो अमेज़न की उपनदियां हैं वो जोर से बहती हुई वहाँ पे वाटरफॉल्स हमको दिखाई देते हैं। उच्च भूमि के प्रदेश से दक्षिण की तरफ पैराग्वे, पैरेना और उरुग्वे, पैराग्वे, पैरेना और उरुग्वे ये जो नदियां हैं यहाँ पे उगम होता है उन नदियों का और वो आगे अर्जेंटीना देश में बहती जाती है। उच्च भूमि का जो पूर्व की तरफ का जो उतार है, स्लोप है, वो बहुत तेज़ और तीखा होने की वजह से वो कड़े के स्वरूप में दिखाई देता है। और दूसरा जो पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेट एस्कर्पमेंट। ग्रेट एस्कर्पमेंट मतलब अजस्त्र कड़ा, ये प्राकृतिक भाग है जो क्षेत्र के विस्तार से देखा जाए तो वो सबसे छोटा है, लेकिन वहाँ का जो स्लोप है उतार के मतलब जो स्लोप उतार के तरफ में है और उसका जो जहाँ पे उधर का जो हवामान मतलब जिसको हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं या उधर की जो परिस्थिति है, इसकी वजह से वो स्वतंत्र विभाग माना जाता है। उच्च भूमि की जो पूर्व की तरफ की जो साइड है और जो इन कड़ियों से अंकित होती है, इस भाग में उच्च भूमि की जो हाइट है 790 मीटर है। कई भागों में ये जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। साओ पाउलो से लेकर पोर्तो अलेग्रे के एरिया तक ये जो हाइट है वो एक उतार से ख़त्म होती है और आग्नेय उसकी वजह से जो आग्नेय दिशा से जो हवा बहती है
जिसको हम व्यापारी हवा बोल सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ का जो बारिश का पर्जन्य का प्रदेश तैयार हुआ है और उत्तर के भाग के वर्ष अवर्षण का चतुष्कोण ऐसा किया, मतलब ब्राज़ील का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा हम जब सोचेंगे तो हमको ये समझ में आता है। ब्राज़ील का जो उत्तर भाग है वहाँ पे जरा बरसात कम होने की वजह से वहाँ पे आवर्षण का चतुष्कोण भाग हुआ है, मतलब जोग्राफिकली। हाँ, किनारी जो प्रदेश है मतलब कोस्टल रीजन, ब्राज़ील को 7,400 किलोमीटर लंबाई किनार पट्टी है। इस किनार में उत्तर और पूर्व ऐसे दो भाग होते हैं। जो कोस्टल रीजन है उसके दो भाग हुए हैं। उत्तर का जो भाग है उत्तर में अमाप से लेकर पूर्व तक रियो ग्रांडे दो नार्तो तक जो किनारा है उत्तर अटलांटिक का किनारा उसको हम बोल सकते हैं, और उसके आगे दक्षिण दिशा की तरफ फैला हुआ किनारा जो है पूरब किनारा उसको हम बोल सकते हैं। मतलब ब्राज़ील का जो किनारा है 7,400 किलोमीटर उसकी मतलब लंबाई है, और ये उत्तर किनारा का पूर्व किनारा और उत्तर किनारा ब्राज़ील का पूर्व और उत्तर दिशा है। उत्तर किनारों पर अमेज़न जैसी बहुत सी नदियाँ आके मिलती है उत्तर साइड में, और उसकी वजह से वहाँ का जो किनारा है वो सक्खल बना हुआ है। और इस किनारे पे मोरजा बेट, मोरजा उपसागर, साओ मार्कोस जैसे उपसागर मतलब छोटे छोटे मतलब उपसागर है। मोरजा ये जो बेट है वो बहुत बड़ा किनारी बेट है, वो अमेज़न व टोकैंटिस नदी की मुखों के दरमियान तैयार हुआ है। पूर्व दिशा भी, अभी ये उत्तर दिशा की तरफ हो गया, अभी पूर्व दिशा की तरफ पूर्व के किनारों पर छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को ये एक बड़ी नदी है, वो आगे जाके अटलांटिक समुद्र में मिलती है। और इस किनारे पे लंबी तक फैली हुई और जो वालुकागिरी जो जिसको हम बोल सकते हैं, इस भाग में कुछ भागों में किनारों का जो रक्षण है प्रवाल कट्टे और प्रवाल बेट, मतलब प्रवाल का बेट जो बोलते हैं जो आइलैंड्स प्रवाल का, उसकी वजह से उसका रक्षण होता है। ओके, थर्ड पार्ट जो है इसको हम प्लेन्स बोल सकते हैं, मतलब मैदानी प्रदेश। जैसे कि ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में है। एक उत्तर का जो भाग है अमेज़न का भाग, और नैऋत्य में पैराग्वे पैरेना नदियों का भाग। उत्तर में अमेज़न का और नैऋत्य में पैराग्वे पैरेना नदियों का भाग। अमेज़न ये जो भाग है ब्राज़ील का सबसे बड़ा विस्तीर्ण मैदानी प्रदेश है। अमेज़न का जो मैदान है वो सर्वसाधारण से उसका जो उतार है पूर्व की तरफ है, और अमेज़न जो का एरिया है ब्राज़ील का जो पश्चिम भाग से मतलब रुंद होकर 1300 किलोमीटर से लेकर दो उच्च भूमि मतलब जहाँ पे दो नज़दीक आते हैं, मतलब दो एरियाज जैसे भी नज़दीक आते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक 240 किलोमीटर इतनी कम होती है। मतलब 1300 मतलब जो एरिया है 1300 लेकर धीरे धीरे आगे आके 240 किलोमीटर तक कम है। जैसे जैसे अमेज़न जो अटलांटिक समुद्र की तरफ जाता है वैसे वैसे मैदानों की जो ब्रेड्थ है वो बढ़ती जाती है। ये जो एरिया है पूरा का पूरा वनों के मतलब जो जंगल से व्याप्त है, और यहाँ पे आने वाले बार आने वाले बाढ़ और ज़मीन पर मतलब बढ़ी हुई ज़्यादा मात्रा में है होने वाली वनस्पति, ये जो एरिया है वो दुर्गम प्रदेश बन गया है। अमेज़न का जो ये जो भाग है जो जंगली भाग है उष्णकटिबंधीय वर्षावरण, मतलब जो उष्णकटिबंध में वो फॉरेस्ट का एरिया आता है। ब्राज़ील का दूसरा भाग
जो ब्राज़ील की नैऋत्य दिशा मतलब पैराग्वे पैराना नदियों का उगम का भाग, वो जो उगम क्षेत्र है वो दक्षिण की तरफ उतार का स्लोप है। वो पैराना नदी जो है उसका जो उतार है वो नैऋत्य दिशा की तरफ से है। पैंटेनल ये विश्व का उष्णकटिबंधीय पान्थल प्रदेश है। ये प्रदेश जो है ब्राज़ील की उच्च भूमि के नैऋत्य दिशा में नैऋत्य की ओर से फैला हुआ है। पैंटेनल वहाँ जो एक बड़ा दलदल का प्रदेश है वो ब्राज़ील में से माटो ग्रासो दो सुल राज्य में आता है। पैंटेनल का विस्तार ब्राज़ील के जैसा अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। और जो लास्ट पार्ट है मतलब रीजन जिसको हम बोल सकते हैं कि फिजियोग्राफिक रीजन में से जो लास्ट का पॉइंट है आइलैंड्स, जैसे कि द्वीप समूह। मुख्य भूमि को छोड़कर ब्राज़ील के देश में कुछ बेटों का समावेश होता है। उनका वर्गीकरण किनारी बेट और सागरी बेट ऐसा होता है। जो किनारी बेट है वो संचय से निर्माण हुई है और जो सागरी बेट है वो मुख्य भूमि से निर्माण हुए। सागरी बेट जो है मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासमुद्र में है। ये बेट छोटे छोटे जो बेट्स है वो बहुत से जो खड़का मतलब पथरीला एरिया होने की वजह से वो जलमग्न जो पर्वत होते हैं उनके जो ऊपर का माथे का भाग होता है ना वैसे है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो प्रवाल की बेटे हैं उनको हम कंकण द्वीप करके बोल सकते हैं। ओके, मतलब इस जगह पे अभी हमने ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफिक रीजन है ब्राज़ील के जो 5 पार्ट हैं जैसे कि उच्च भूमि हो, अजस्त्र कड़ा हो, किनारी प्रदेश हो, मैदानी प्रदेश हो और द्वीप समूह हो, इसमें ब्राज़ील के 5 भाग होते हैं जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कंपैरेटिवली विथ इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैंने अभी आपको बता दिया ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ओके, we will be continue in the next video. Thank you.